Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Dear children, today we are going to complete the remaining part of the story which we started in previous class, and the name of the story you must be remembering, I hope, A Pinch of Snuff. A Pinch of Snuff by Manohar Malgaonkar. So already we have done a big part of the story. Hopefully the remaining part of the story we shall complete today. So मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग आज A Pinch of Snuff जिस कहानी को हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था उसे आज कंप्लीट करेंगे. So already we have done the greater part of the story in the previous classes, so you must be remembering certain important things of this story. Like this story, A Pinch of Snuff. Snuff का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, जिसे सूंघनी कहते हैं. सूंघनी ये पाउडर्ड टोबैको सब्सटेंस है एंड इट्स एडिक्टिव ऑल्सो. इससे नशे की लत भी लग जाती है. सो अ पिंच ऑफ सनफ, इन फैक्ट दिस इज द पंच लाइन ऑफ द स्टोरी. यह स्टोरी का पंच लाइन है. द नरेटर बिल्ड्स अप हिज स्टोरी आफ्टर टेकिंग अ पिंच ऑफ सनफ. सो द ऑथर मनोहर मालगाonkar and he is also the narrator of the story. So we have already learned that his maternal uncle Nanu Kaka is about to visit his house. Though he is not that much comfortable with this announcement that his uncle is about to visit. The reason is when he comes to know that his uncle is about to meet a minister, so he thinks it takes a lot of time to fix an appointment with a minister. वो ऐसा सोचते हैं कि मंत्री से मिलने में तो बहुत वक्त लगता है, इसलिए नरेटर असहज होता है. ऑथर ही कहानी का नरेटर है, लेकिन उनकी जो माँ है, नरेटर की माँ, वो कहती हैं कि ही विल कम हार्डली फॉर 2 days और इवन 3 days, नॉट मोर देन दैट. वो कहती हैं कि उनके अंकल या तो 2 दिन या बमुश्किल से 3 दिन, उससे ज़्यादा रहने के लिए नहीं आ रहे हैं. So this is how the story builds up. Nanu Kaka has already arrived at the station. Also we find a fiasco there. In fact, that part, the station part, is also containing humor and irony also. उसमें भी हास्य भी है और irony भी है, विरोधाभास भी है. So thereafter what happens, he gets an appointment with the minister. He meets the minister Sohan Lal there at his residence also, and thereafter what the story is having for us, let us find out in the next paragraph. So Nanu Kaka waved away any further explanation. Waved away, उन्हें कुछ खास ज़्यादा बताया नहीं, वो आगे बढ़ गए. That should be quite simple. और वो कहते हैं ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है. He announced, I'll write and tell HB to do it. मैं HB को लिखूँगा, जो हजरत बरकत अली हैं उनको लिखूँगा और वो करेंगे इसको. No, no, don't thank me at all. मुझे इस बात का आप धन्यवाद न दें. After all, we are we man in the public eye. हम सब जनता की नज़र में हैं. Must do things for one another. एक दूसरे के लिए तो कुछ बेहतर करना ही चाहिए. And thereafter he laughs, ha ha ha. One good turn deserves another. तो और इस तरह से कुछ बेहतर रिश्ते बनते हैं, और एक काम अगर आप हमारा करेंगे तो उसके आगे और अच्छे काम होंगे. नानू काका opened his silver snuff box. नानू काका अपने चांदी के स्नफ बॉक्स खरीदते हैं, खोलते हैं. And took a pinch, और थोड़ा सा एक चुटकी भर उससे निकालते हैं. Then flicking on his अंगोछा, और उसके बाद अपने अंगोछे पर वो अपने हाथ साफ करते हैं. He casually mentioned the name of the welfare minister, और casually यूं ही उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर
जो लोक कल्याण मंत्री होंगे उनका नाम लेते हैं। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वेनिस्ड, और जो ग्रीन थी, जो एक ढंग से सिकुड़न था उनके चेहरे पर, सोहनलाल के चेहरे पर, वो गायब हो जाता है। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वे आपके दोस्त हैं? नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली। नानू काका अपने ही स्टाइल में स्वीकारते हुए कहते नहीं नहीं, कोई खास नहीं। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड। अब सोहनलाल को यकीन हो जाता है कि वो जो मिनिस्टर है वो इनका दोस्त है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड। सोहनलाल कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। रिलीव्ड, उनको थोड़ी राहत भी महसूस होती है। सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड, और इतना इनग्रैटिट्यूड का मतलब बच्चों कृतघ्न होता है। कृतघ्न। So I am so glad, Sohanlal said relieved, so glad the man such ingratitude, इतना बड़ा कृतघ्न। I gave him a ticket, मैंने उनको टिकट दिलवाई थी या दिया था। तो बच्चों यहाँ जो टिकट है वो इलेक्शन का टिकट है। Helped him in every way, हर रास्ते मैंने उनको मदद किया, हर तरीके से मदद किया। And what do I get in return, और बदले में मुझे क्या मिला? So this is how Nanu Kaka is flattering in a sense, no? He is throwing his largesse on Sohanlal, talking different sort of things. He is trying his best to impress Sohanlal, and of course he has succeeded in his art. तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तरह से नानू काका सोहनलाल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक हद तक या यूँ कहें कि वो सफल भी हो गए। उन्होंने सोहनलाल जी को इम्प्रेस भी कर दिया अपनी बातों से, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से। सो दिस इज हाउ, इन फैक्ट इट ऑल्सो कंटेन्स सटायर ऑन द सिस्टम, सटायर ऑन आवर सोसाइटी। यह एक व्यंग्य भी है अपने समाज में कि लोग इस तरह से हल्की फुल्की बातें करके किस तरह से अपना काम निकाल लेते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, ऐसा मालूम हुआ, पता चला कि एक ज़माने में मंत्री और लाला सोहनलाल बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। Were now at Dagger's Drawn. Dagger's Drawn. See this word. यह एक ईडियम है, डैजर्स ड्रोन। इट मीन्स शॉन एनिमी, तो एक ढंग से शत्रुता। So it turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at Dagger's Drawn. तो ऐसा मालूम चला कि एक ज़माने में मंत्री और लाला सोहनलाल बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, लेकिन अब जानी दुश्मन बन गए। Since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son, जब से मंत्री ने इनकार कर दिया, शादी का जो प्रस्ताव था उसे इनकार कर दिया लालाजी के लड़के से। He wants a prince, उन्हें एक राजकुमार चाहिए। सोहनलाल स्नॉर्टेड, वो नाराज होकर बोले कि उनको एक राजकुमार चाहिए। What is a prince these days? इन दिनों राजकुमारों की क्या हैसियत है, राजकुमार क्या है? For confidential, I can tell you that the minister has burnt his boats. Burnt his boats भी एक ईडियम है, मतलब वापस आने के सारे रास्ते जब बंद कर दिए जाते हैं तो उसे आप burnt his boats, इस ईडियम से उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। So I'd be surprised if he is given a ticket for the next election. और मुझे आश्चर्य होगी इस बात से
कि अगर उनको नेक्स्ट इलेक्शन का, अगले चुनाव में उनको टिकट मिल गया तो वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होऊंगा। ही टर्न्स माई सन डाउन, मेरे लड़के को उन्होंने छोड़ा, प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, इनकार कर दिया, एंड वांट्स अ प्रिंस, और उनको चाहिए एक राजकुमार। वाह! एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात क्या है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज्ड हॉरोस्कोप्स, और यहाँ तक कि जो कुंडली होती है शादी के टाइम में, जो जन्म कुंडली लोग मिलाते हैं, तो उसे आप हॉरोस्कोप्स कहते हैं। सो आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज्ड हॉरोस्कोप्स, अभी तक तो कुंडली का भी मिलान नहीं हुआ है। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषाचार्य हैं या जो पंडित हैं, इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच। यहाँ तक कि जो ज्योतिष हैं, जो पंडित हैं, क्योंकि लग्न तो मिलाया नहीं उन्होंने, तो वो भी अभी कहने को बाकी हैं कि ये शादी शुभ होगी या नहीं होगी। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉर्टेड। फिर से वो कहते हैं, वो खींच कर कहते हैं, बहुत दुखद, बहुत निंदनीय। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस राजकुमार की बात आप करते हैं। सो दिस इज हाउ द टॉक गोज ऑन बिटवीन नानू काका and Sohanlal. No, so and the dialogue keeps on going. The matter of marriage comes in between, and Sohanlal is very angry at the minister because the minister has turned down the proposal of Sohanlal. So therefore he is very angry. The minister is perhaps looking for a prince, and it in fact angers Sohanlal, and at this moment Nanu Kaka फेवर्स सोहनलाल। और इस जब शादी की बात हो रही है, नानू काका से सोहनलाल जी सारी बातें कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मंत्री ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मंत्री को कोई और चाहिए जो एक राजकुमार हो। तो इस पर नानू काका सोहनलाल जी का पक्ष लेते हुए उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, कैसा राजकुमार, कौन सा राजकुमार, आज की तारीख में राजकुमार की हैसियत क्या है। And this is how the story builds up. Let us see the next paragraph. Some two-penny estate called Ninnor. Some two-penny, 2 कौड़ी का estate जिसका नाम निन्नौर है। We left the house soon after that. हम उसी वक्त घर छोड़कर निकले। नानू काका having again promised that he would write to old HP. और नानू काका वादा कर रहे हैं उनसे, उन्होंने वादा किया कि मैं फिर उस पुराने अपने मित्र एचबी हजरत बरकत अली को लिखूंगा। दैट वेरी डे, उसी दिन लिखूंगा। एज वी ड्रोव अवे, जैसा हम वहाँ से चले, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। तो जब हम चल रहे थे वहाँ से, तो लाला जी और उनका सेक्रेटरी दोनों अपने छज्जे से हमें देख रहे थे। नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner. उस शाम को नानू काका बिल्कुल ही चुप थे, विचित्र तरीके से चुप थे। But in the morning he was chirpy again. लेकिन सुबह होते वो फिर से खुश दिखे। We are going to the minister's house. हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। This morning, आज की सुबह, he announced. उन्होंने घोषणा की। Not me please uncle. मुझे साथ मत ले चलो अंकल। I appealed. मैंने कहा। तो मैंने कहा, ये मैंने कौन है बच्चों? आप जरा सोचें कि who is this I? No? So this I refers to the narrator. यह I narrator के लिए है। Narrator, and again one question arises here, who is the narrator? Narrator कौन है? तो narrator is the author of this story. इस कहानी के जो लेखक हैं वही नैरेटर भी हैं। Then again one question arises that who is the author? Of course मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर वो इस कहानी के लेखक हैं। So in this part, in fact, what we have studied, that Nanu Kaka, after meeting Sohanlal, after casting an impression, positive impression upon him,
he leaves the house with the narrator. On that particular day, or in the evening when they reached their home, so Nanu Kaka was very, or the author has used the word strangely silent. तो नानू काका अजीबो गरीब तरीके से उस शाम को बड़े शांत थे, बड़े चुप नज़र आ रहे थे. But the next morning he was again chirpy. अगली सुबह वो फिर से खुश हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं. And he announced that we are going to meet the minister. और उन्होंने ये घोषणा की कि हम आज मंत्री से मिलने जा रहे हैं. इस पर नैरेटर जो है वो कहता है, मुझे आप छोड़ दें, मुझे आप बख्श दें, मुझे आज आप नहीं ले चलें. So thereafter, what is the response of Nanu Kaka, we shall see in the coming paragraph. He inhaled some snuff before he spoke. फिर से नानू काका थोड़ी सी सूंघनी लेते हैं और बोलते हैं. And by that time he seemed to have forgotten what I had said. और तब तक वो भूल चुके हैं कि मैंने उनसे क्या कहा था. आप बच्चों याद कर सकते हैं कि नरेटर ने नानू काका से क्या कहा था. तो नरेटर कह रहे हैं कि आप मुझे मत ले चलें. नानू काका कह रहे हैं, दिस कार ऑफ योर्स, यह तुम्हारा कार, टू ओल्ड, बहुत पुराना है, टू स्मॉल, बहुत छोटा भी है. वी शैल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमें कुछ बड़ा, सुंदर सा, प्रभावशाली दिखना चाहिए, लेना चाहिए. यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट. तुम इस बात पर गौर किए होगे, तुमने इसे देखा होगा कि किस तरह से पहली मर्तबा, पहली दफ़ा सेक्रेटरी ने हमारे साथ व्यवहार किया, और व्यवहार कोल्डली था, मतलब अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं किया था. इफ़ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, अगर हम बड़े कार में जाते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो वह बिल्कुल अलग तरीके से हमारे साथ पेश आता. सो डियर चिल्ड्रन, what we find at this juncture of the story, that the narrator is indicating to us the status differences in the society or class difference which you say, कि अगर बड़ी कार में जाएंगे तो उनकी बड़ी इज्जत होगी, छोटी कार में जाएंगे तो उनकी कम इज्जत होगी. So this shows the class difference in our Indian society. What about a taxi? तो नेटर जो है वो कह रहे हैं, तो ठीक है, टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है. नो, नॉट अ टैक्सी, नहीं, टैक्सी क्यों, टैक्सी नहीं, अ प्राइवेट कार, एक निजी कार चाहिए, ड्रिवन बाय लिवेरिड शॉफर, एक जो बिल्कुल ट्रेंड हो, वेल डेकोरेटेड हो, वेल ड्रेस्ड हो. सो लिवेरिड शॉफर, शॉफर इज द ड्राइवर, शॉफर हम कार चालक को यहाँ कह रहे हैं. और जो लाइवरीड है या लिवेरिड है, वह एक वेल डेकोरेटेड, वेल ड्रेस्ड प्रोफेशनल, जो बिल्कुल ठीक ठाक कपड़े में, पोशाक में हो, ड्राइवर की पोशाक में हो. तो नानू काका कह रहे हैं, अ प्राइवेट कार ड्रिवन बाय ए लाइवरीड शॉफर, द बिगर द बेटर, जितना बड़ा होगा उतना बेहतर होगा. आई रिमेंबर्ड दैट एन एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब जो जान पहचान के लोग होते हैं. So I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court procession. I told Nanu Kaka about it. तो लेखक, नैरेटर जो हैं, वो कहते हैं उनको कि मेरे एक जान पहचान के मित्र हैं या जानने वाले हैं, वो पिछले कई महीनों से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा और बिल्कुल जो आम तौर पर दिखाई नहीं देता है, आउटलैंडिश, नो, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, जो बिल्कुल अजीब सा है, बड़ा है, स्टेटली है, वह उस कार को बेचने की कोशिश कर रहा है या बेचना चाह रहा है. आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को इसके बारे में कहा. सो इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, इन फैक्ट, द मैटर इज दैट Nanu Kaka is adamant to visit the minister. He wants to see the minister. For that purpose, in fact, he needs a big car. The narrator, who is having an old and a small car, Nanu Kaka doesn't prefer that car. Narrator के पास एक पुरानी सी कार है,
छोटी सी कार है, नानू काका उसमें नहीं जाना चाहते हैं। वो नरेटर को बताते हैं कि तुमने देखा था लास्ट टाइम सेक्रेटरी हमारे साथ किस तरह से बिहेव किया था, किस तरह से पेश आया था। हमें इस बार बड़ी गाड़ी में जाना है, सुंदर सी गाड़ी में जाना है। तो उसके बाद जो नरेटर हैं वो उनको बताते हैं कि नरेटर का एक कोई मित्र है जिसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, और उस गाड़ी को कई महीनों से वो बेचने के फिराक में है। सो दिस इज हाउ द स्टोरी इज हियर। लेट अस सी द नेक्स्ट। That's it. We shall take it out for a brief trial, he suggested breezily. बड़े आहिस्ते से नानू काका कहते हैं, बहुत खूब, ठीक है, एक छोटे से ट्रायल के लिए हम उस कार का इस्तेमाल करेंगे। आई एम श्योर वी कुड। आज से मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। इफ़ यू लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम जेन्युइन बायर्स की तरह दिखें। बच्चों आप यहाँ गौर कर सकते हैं, सी द वर्ड्स नो। लेखक कहना क्या चाह रहा है, यहाँ दिखने और दिखाने की बात हो रही है। क्या है उसकी बात नहीं हो रही है। क्या दिखा रहा है, जो है वो दिखा नहीं रहा है, ये बात हो रही है। सो इफ़ यू लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, नरेटर कह रहा है कि अगर हम जेन्युइन बायर्स की तरह दिखें तो। अब यहाँ ये इसलिए कह रहा है कि ये लोग बायर्स हैं नहीं, ये लोग खरीदने वाले नहीं हैं। नानू काका से आप अच्छी तरह से परिचित हो चुके होंगे अब। बट डू, लेकिन क्या हम ऐसा लगते हैं? दीज मोटर कार टॉट्स, जो बेचने वाले, जिसे आप एजेंट कहते हैं, दलाल कहते हैं। सो दीज मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। ये जो कार बेचने वाले होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं। 1 मील दूर से ही सच्चा ग्राहक कौन है उसे पहचान लेते हैं। यू लिव दैट टू मी, नानू काका से। नानू काका कहते हैं ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, इसकी फिक्र न करो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, ये सारी बातें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, उसका डिटेल्स दे दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लाइवरीड शॉफर, और इस बेहतरीन शॉफर के बारे में क्या, चालक के बारे में क्या? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। नानू काका कहे बिल्कुल, तुम तो हो ही, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। सो हियर अगेन नानू काका इज गोइंग टू प्ले हिज अनदर गेम, द ट्रिक which he had played with Sohanlal. He succeeded there also, and now the turn, though the target is the minister, he has to visit the minister, but prior to visiting the minister he wants to have a stately outlandish car, and for that purpose he is visiting that car dealer, and there is a talk between the narrator and नानू काका। तो नानू काका और नरेटर के बीच एक बात छिड़ती है। नानू काका को इस बार मिलना है मंत्री से, लेकिन वो मिलना जाना तो चाहते हैं, लेकिन उस कार में नहीं जो नरेटर के पास है। इस बार उनको एक स्टेटली कार चाहिए, आउटलैंडिश कार चाहिए, बहुत बड़ी कार चाहिए, महंगी कार चाहिए। तो इसलिए वो लोग एक कार डीलर के पास जाने की तैयारी करते हैं। नरेटर नानू काका को समझाते हैं कि ये जो लोग कार बेचते हैं, ये जो कार डीलर्स होते हैं, बहुत दूर से पहचान लेते हैं कि जेन्युइन ग्राहक कौन है, सच्चा ग्राहक कौन है, कोई फ्रॉड तो नहीं, खरीदने वाला तो नहीं। लेकिन नानू काका, आप तो समझते ही हैं कि नानू काका किस तरह के लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी बात मेरे ऊपर छोड़ दो, ये सब बात, इन तमाम बातों को मैं संभाल लूँगा। सो दिस इज हाउ इन फैक्ट द स्टोरी बिल्ड्स अप, it develops, and Nanu Kaka is playing his game at his best. He is playing it very safely, but of course there is always an element of adventure. So this is how we have read this story. The remaining part of the story we shall find in the next class. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.